2019 کا آخری سورج تلخ و شیریں یادیں لیے رخصت ہو گیا. شہریوں نے مشکلات، پریشانیاں اور نفرتیں سب پیچھے چھوڑ دیا. نئے سال کا آغاز نئے عہد سے کرنے کا عزم. آئیں سب آج سے سارے گلے شکوے بھلائیں، اپنوں کو منائیں، روٹھوں کو گلے لگائیں، مثبت سوچ اپنائیں. نئے سال سے نئی امیدیں لگائیں. کراچی کے ساحل پر عوام نے آفتاب کو الوداع کیا. لاہوریوں نے دریائے راوی پر سورج کا آخری نظارہ کیا. اسلام آباد والوں نے مارگلا کی پہاڑیوں سے شمس کو رخصت کیا. جشن منائیں گے. نوجوان ڈبل سواری پر ساحل سمندر جائیں گے. حکومت نے ڈبل سواری پر لگائی گئی پابندی واپس لے لی. راستے کھول دیے گئے. پولیس نے بھی سیکیورٹی پلان تیار کر لیا. شہریوں سے اپیل ہے کہ نیو ایئر کی خوشیاں ضرور منائیں، لیکن برائے مہربانی ہوائی فائرنگ سے پرہیز کریں، کیونکہ ہوائی فائرنگ سے جانی نقصان ہو سکتا ہے. سال نو کا جشن منائیں مگر احتیاط کے ساتھ. سابق قومی کپتان سرفراز احمد کا مشورہ. کہتے ہیں شہری نئے سال کے موقع پر ہوائی فائرنگ سے گریز کریں. آپ کا جشن کسی کی جان بھی لے سکتا ہے. نئے سال پر مہنگائی کا نیا طوفان، عوام کا استقبال. نیپرا نے کے الیکٹرک کو بجلی 4 روپے 90 پیسے مہنگی کرنے کی اجازت دے دی. صارفین پر 106 ارب روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا. حتمی فیصلہ وفاقی حکومت کی منظوری کے بعد ہوگا. بجلی ہی نہیں، تیل کے دام بھی بڑھ جائیں گے. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا امکان. پیٹرول کی قیمت میں 2 روپے 61 پیسے، مٹی کے تیل کی قیمت میں 3 روپے 10 پیسے اضافے کی تجویز. اوگرا نے سمری وزارت پیٹرولیم کو بھجوا دی. اے این ایف کو داغدار کرنے کے لیے مہم چلائی گئی. جنگ لڑنے والے ادارے کا استحصال کیا گیا. فردوس عاشق آوان کی میڈیا بریفنگ. کہا آج ڈی جی اے این ایف نے کابینہ کو بریف کیا. حقائق سامنے رکھے، کیس سے جڑی حقیقتیں بیان کی. ملک میں مزاج رہا ہے کہ پہلے کسی طاقتور کو پکڑا نہیں گیا. بلاول کی آفر نے سرد موسم میں سیاسی پارا ہائی کر دیا. وفاقی حکومت کا ایم کیو ایم سے ملاقات کا فیصلہ. جہانگیر ترین کی سربراہی میں وفد رواں ہفتے ملے گا. تحفظات اور مطالبات سنے گا. ذرائع کے مطابق آفر کے بعد ایم کیو ایم پاکستان 2 دھڑوں میں بٹ گئی. ایک دھڑا بلاول کی آفر پر سنجیدہ، دوسرا دھڑا حکومت کے ساتھ. بلاول نے اچھی پیشکش کی، ایم کیو ایم ضرور دیکھے. سابق گورنر سندھ محمد زبیر کا مشورہ. کہا نیب کا قانون نہیں، وزیر اعظم کو بدلنے کی ضرورت ہے. معلم جبہ اور بی آر ٹی میں بے ضابطگیوں کے بعد بچنے کے لیے آرڈیننس لایا گیا. نیب اب عیب بن چکا ہے، لانے والوں کو ہی کاٹنا شروع کر دیا. امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا خطاب. کہا این آر او نہ دینے کا اعلان کرنے والے مسلسل این آر او دے رہے ہیں. حکومت کو لانے والوں نے بھی ناکامی کا اعتراف کر لیا. سندھ ہائی کورٹ نے پی آئی اے سربراہ ایئر مارشل ارشد ملک کو کام سے روک دیا. عدالت نے قومی ایئر لائن کو نئی بھرتیوں، ملازمین کی برطرفیوں اور تبادلے سے بھی روک دیا. الیکشن ٹریبیونل کا بلوچستان کے 2 حلقوں میں دوبارہ الیکشن کا حکم. امیدواروں کی کامیابی کے نوٹیفیکیشن معطل. پی بی 8 بارکھان سے عبد الرحمان کھیجران اور پی بی 48 کیس سے اکبر آسکانی کامیاب ہوئے تھے. دونوں کا تعلق بلوچستان عوامی پارٹی سے ہے. الیکشن کمیشن اراکین کی تعیناتی کے لیے حکومت کو مزید 15 دن مل گئے. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے مارکس دیے. حکومت اور اپوزیشن کسی نام پر اتفاق نہیں کر سکتی تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں. قومی اسمبلی کے قانونی مشیر عبداللطیف یوسفزئی کی اگلی سماعت پر اچھی خبر دینے کی یقین دہانی. آج نیوز نے سندھ میں گیس بحران کی وجہ کا پتہ چلا لیا. سندھ کی گیس پنجاب اور بلوچستان کو دی جا رہی ہے. سینئر جنرل مینیجر ڈسٹریبیوشن ڈویژن سعید احمد لار کا انکشاف. کہا سوئی صدن کو 70 MMC FD گیس کمی کا سامنا ہے. بحران جنوری تک ختم ہو جائے گا. انکم ٹیکس گوشوارے جمع کروانے کی تاریخ میں ایک بار پھر توسیع. ٹیکس گوشوارے 15 جنوری 2020 تک جمع کرائے جا سکتے ہیں.
FBR ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नए पाकिस्तान में शोहदा के अहल खाना का बुरा हाल। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के शोहदा के लवाहिकीन हुकूमत के खिलाफ घरों से निकल आए। कहते हैं शोहदा पैकेज मिला, ना ही तनख्वाहें दी जा रही हैं। मुजाहिरीन का वादे के मुताबिक नौकरियां देने का मुतालबा। बालाई और शिमाली इलाकों में सर्दी लहू जमाने लगी। गिलगित बल्तिस्तान में नदी, नाले, आबशार और दरिया सब जम गए। सयाह मशहूर खिलती झील पर चहलकदमी करने लगे। दो 2019 का सूरज तल्खो शीरी यादें लिए हमसे रुखसत हो गया। चंद घंटों बाद ये साल भी हमसे जुदा हो जाएगा। मुख्तलिफ शहरों में गुरूब आफ्ताब का मंजर देखने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद पहुंची। कराची के साहिल पर अवाम का रश रहा। इस्लामाबाद में पाकिस्तान मोनूमेंट्स में लोग बड़ी तादाद में सूरज गुरूब होने का मंजर देखते रहे। अवाम ने इस दुआ और उम्मीद के साथ सूरज को अलविदा किया कि चढ़ता सूरज नई उम्मीदों और पाकिस्तान का बेहतर मुस्तकबिल लेकर 2019 को अलविदा करने और नए साल को खुशामदीद कहने के लिए लाहौरी पुरजोश हैं। अवाम न्यू ईयर नाइट जबरदस्त अंदाज से बनाने के लिए पुरअज़्म है। शहर में अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए लाहौर पुलिस भी मुतहरिक है। मज़ीद जानेंगे नुमाइंदा आज न्यूज़ अकील अहमद से। अकील बताइएगा। 2019 के आखिरी लम्हात हैं और नए साल 2020 की आमद है और नए साल को खुशामदीद कहने के लिए जिंदा दिलाने लाहौर और बिलखसूस मन चले नौजवान थोड़ी देर बाद माल रोड का रुख करेंगे और यहाँ पर वो नए साल का जश्न मनाएंगे और उसे खुशामदीद करेंगे जिस तरह पूरी दुनिया में इस वक्त जश्न मनाया जा रहा है। और यहाँ पर जो है नौजवान जो हैं वो जश्न मनाएंगे तो उसके लिए सिक्योरिटी के भी सख्त तरीन इंतजामात किए गए हैं। लाहौर पुलिस और ज़िले इंतज़ामिया ने जो है 6000 से ज़ायद यहाँ पर लाहौर के मुख्तलिफ सड़कों माल रोड, जेल रोड और लिबर्टी चौक, गुलबर्ग में 6000 से ज़ायद अहलकार तैनात किए गए हैं ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटा जा सके। यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि माल रोड पर ट्रैफिक के फ़्लो के लिए बैरियर्स भी लगा दिए गए हैं ताकि जो ट्रैफिक का फ़्लो है उसमें खलल ना आए और ट्रैफिक बिल्कुल जो है जश्न मनाने वाले वो आराम से यहाँ से गुजर जाएं और वो जश्न मनाएं और नए साल को खुशामदीद कहें। तो सिक्योरिटी सूरत हाल तो आपने जानी, जिंदा दिलाने लाहौर क्या कहते हैं ये अब आपको बताएंगे। 19 ख़त्म हो गया है और 2020 में हम दाखिल हो रहे हैं और हमें किसी भी सूरत में नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। 2019 में हमें काफ़ी मुश्किलात आई हैं, महंगाई काफ़ी है। उम्मीद है 2020 में जो है ये महंगाई वगैरह कम होगी। हम तो अल्लाह ताला से यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारा जो ये नया साल चढ़ता है इसमें अल्लाह ताला काफ़ी कमी करे, महंगाई में थोड़ा सा कम करे। 2019 तो बड़ा मुश्किल गुजरा है, ख़ासकर ये जो हुकूमत है इसने बहुत महंगाई की है। उम्मीद है कि शायद 2020 अच्छा गुजरे, ये हुकूमत महंगाई कम करे और हम सबको दुआ भी करनी चाहिए। 2019 तो गुजर गया जैसा गुजरना था, लेकिन अब 2020 में हमें उम्मीद है कि अच्छा गुजरेगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह हमारे मुल्क के लिए और हमारे लिए अच्छा करे। 2019 मुश्किल था, 2020 में तरक्की होनी चाहिए, खुशहाली आनी चाहिए, महंगाई ख़त्म होनी चाहिए। बात करते हैं पेशावरी मंचलों की जो नए साल को खुशामदीद कहने के लिए सख्त सर्दी के बावजूद बाहर निकल पड़े। हयाताबाद ओवरहेड पुल पर पेशावरों की मस्तियां जारी हैं। मजीद जानते हैं आज उसके नुमाइंदे शहाबुद्दीन से। जी शहाब, अपडेट कीजिए। सख्त सर्दी में नौजवान बाहर निकलकर नए साल को वेलकम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह पेशावर में भी यहाँ पर न्यू ईयर नाइट मनाने के लिए नौजवान निकले हुए हैं। जगह जगह पर यहाँ पर हयाताबाद फेज 3 चौक में जो पुल बना हुआ है ओवरहेड ब्रिज, यहाँ पर लोग आम दिनों में भी आ जाते हैं लेकिन आज बहुत रश देखने में आ रहा है और यहाँ पर ये नौजवान निकले हुए हैं न्यू ईयर नाइट के खुशियाँ मनाने के लिए। और इसी तरह के कई मौक़ों पर ये खुशी के मौक़ों पर ये लोग यहाँ पर जमा होते हैं। पेशावर
पेशावर के मुख्तलिफ सदर बाज़ार में और इस तरह दूसरे जगहों पे बड़े बड़े होटलों में म्यूज़िकल नाइट के तकारीब का अहतमाम किया जा रहा है और इसी तरह खुले मैदानों में ये नौजवान यहाँ पर खुशी का इजहार कर रहे हैं। इसके बाद ये लोग जब तारीख चेंज होगी 2020 शुरू होगा तो उस वक्त आतिशबाजी का मुजाहिरा भी किया जाएगा। जी, कराची वाले भी इस बार खुलकर न्यू ईयर नाइट मनाएंगे। वजीर आला सिंध की हिदायत पर शहर में डबल सवारी पर आयद पाबंदी खत्म कर दी गई है। तहम असलहे की नुमाइश और वन व्हीलिंग पर पाबंदी बरकरार रहेगी। कमिश्नर कराची कहते हैं कि शहरी नए साल का जश्न जिम्मेदारी के साथ मुहज़्ज़ब अंदाज में मनाएं। इसी हवाले से जानेंगे आज न्यूज़ के नुमाइंदे फैजान जलीस हमारे साथ मौजूद हैं। फैजान, बताइएगा इस वक्त शहर क़ायद में क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, साले नौ के मौके पर महकमा दाखिला की जानिब से शहर भर में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसका इतलाक होने से कबल ही कमिश्नर कराची की जानिब से मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी उठाने का ऐलान किया गया। साथ ही साथ वज़ीर आला की जानिब से भी ऐलान किया गया कि साहिल के अतराफ जो रुकावटें लगाने का फैसला किया गया था उस पर अमल नहीं होगा, जिसके बाद शहर भर में नौजवान मोटरसाइकिल की डबल सवारी से फ़ायदा उठाते हुए साहिल की जानिब भी जा सकेंगे। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो भरपूर तरीके से जश्न मनाने में नौजवान कामयाब हो सकेंगे। लेकिन शहर भर में हवाई फायरिंग करने, आतिशबाजी करने, हुल्लड़बाजी करने वालों के खिलाफ भरपूर कानूनी जो है वो कार्रवाई की जाएगी। दीगर मुख्तलिफ मकामात पर भी जो है वो पुलिस और दीगर सिक्योरिटी इदारे जो है वो अपने फ़राइज़ अंजाम देंगे। जी, कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान सरफराज अहमद ने कराची के शहरियों से अपील की है कि नए साल की आमद पर हवाई फायरिंग से गुरेज करें, क्योंकि इससे किसी की जान भी जा सकती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सरफराज अहमद। कराची के मौजूद शहरियों से अपील है कि न्यू ईयर की खुशियां ज़रूर मनाएं, लेकिन बराए मेहरबानी हवाई फायरिंग से परहेज करें, क्योंकि हवाई फायरिंग से जानी नुकसान हो सकता है। तो कराची पुलिस को सपोर्ट करें और हवाई फायरिंग से परहेज करें। थैंक यू। कराची में नए साल की खुशियां मनाने के लिए लोगों